तो लास्ट टाइम हमने ट्रांजिस्टर के बारे में डिटेल में देखा था. Okay. Yes. Okay. So let us see the next topic, that is about the logic gates here. Yeah. So जैसे कि हम ऑलरेडी जानते हैं कि देर आर 3 मेन टाइप ऑफ लॉजिक गेट्स. ठीक है. लॉजिक गेट्स मतलब क्या, स्विचिंग सर्किट्स जो होते हैं. तो मतलब सपोज उसमें ऐसे एक सर्किट्स होते हैं कि जो जिसका उसमें स्विचेस होते हैं. तो स्विचेस का जो पोजीशन है ऑन या ऑफ, उसके ये 3 टाइप के जो गेट्स है वो हम स्टडी करेंगे यहाँ पे. तो सबसे पहला जो और गेट है, तो और गेट इज द गेट in which suppose there are 2 switches A and B, and suppose there are different options, either 0 0 or 0 1 or 1 0 and 1 1. तो उसमें होता क्या है ना कि और गेट के अंदर जो इसको हम A plus B से डिनोट करते हैं और 0 0 0 रहता है. If any one of these is 1, then the output will be 1, like this. This is called as the OR gate. OR मतलब A or B. ठीक है. If A or B is 1, then the A plus B will be also 1. ये उसका ये रूल है. ठीक है. OR गेट का. और उसका जो सिंबल है तो वो इस तरह से होता है. This is a symbol of OR gate where there are 2 inputs A and B here, and there is only one output which is denoted by Y generally. And switching circuit is just like this. 2 switches are just kept parallel to each other in this way. And there is a bulb here in this combination. Okay, so this is the switching circuit. And this is the truth table. Okay, if you just talk about the AND gate, तो AND gate का truth table कैसा होता है, तो वो देखो एक बार ठीक से. AND gate के अंदर देखो क्या होता है कि if any one of the input is 0, then the output will be 0. Suppose this is A, this is B, and this is A into B. A into B हमेशा A and B जो है वो हमेशा A into B से डिनोट किया जाता है. So if both of them are 0, then the output will be 0. If one of them is 0, then the output will be 0. If the first one is 0 and second is 0, then still the output is 0. But only when both of them are 1, then only the output is 1. And the symbol of AND gate is just like this. It's somewhat curved. It also has the 2 inputs and 1 output. Okay, so this is A, here it is B, and this is Y. And switching circuit will be just like 2 switches which are kept in parallel to each other like this. And here it is bulb. So this is the Y output, and this is open, then its value will be 0. If it is closed, then its value will become 1. Accordingly, here also this switch will be open, the value will be 0. And if this switch is closed like this, then its value will become 1. Okay. So accordingly, your voice is breaking. Yes. हेलो, नहीं सुनाई नहीं दिया. सर आपका वॉइस है ना बीच में ब्रेक हो रहा है. ब्रेक हो रहा है? यस सर. ब्रेक तो नहीं होना चाहिए. एक मिनट. हेलो.
हेलो हेलो. Yes, sir, it's coming now. Okay, so this will be the output, and NOT gate is just simply the single इनपुट ऑपरेशन. तो ये सपोज ए बार ए है, तो इसके दो ही ऑप्शंस हमारे पास है, या तो वो 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है. बट अकॉर्डिंगली द नॉट ऑफ ए मींस ए बार, तो इट विल बी आइदर 1 और 0. ठीक है, तो अगर ए 0 है तो ये ए बार 1 होगा, और अगर ए 1 है तो ए बार 0 हो जाएगा. तो ये उसका वन हियर. इट इज नॉट द डायोड एक्चुअली, ये डायोड नहीं है, इट इज द नॉट गेट. ओके, this bubble means this will just make reverse, तो ये उल्टा कर देगा उसको. तो इस तरह से, और यहाँ पे उसका जो ये है सर्किट डायग्राम है, स्विचिंग सर्किट, वो इस तरह से होगा. यहाँ पे पैरेलल में इस तरह से स्विच कनेक्ट किया जाएगा, और ये बल्ब इस तरफ होगा. देखो ऑब्वियसली जैसे हम ये स्विच ओपन रखेंगे तो स्विच का वैल्यू तो 0 होगा, नो डाउट, लेकिन जो बल्ब है वो उस समय ऑन होगा क्योंकि करंट उसमें से फ्लो होगा, तो इसलिए वो 1 होगा. लेकिन जैसे हम स्विच क्लोज करते हैं, and no current will flow through this bulb, and hence bulb will remain off, and that's why its value will become 0. तो इस तरह से जब स्विच का वैल्यू 1 होगा तो बल्ब का वैल्यू 0 हो जाएगा, और जब स्विच का वैल्यू 0 होगा तो उस समय बल्ब का वैल्यू 1 हो जाएगा. ठीक है, तो इसलिए वो उल्टा करता है, इसको बोलते हैं नॉट गेट. और ये उसका स्विचिंग सर्किट है, और ये उसका ट्रूथ टेबल है, और ये सिंपल. ओके, अभी इन सब के कॉम्बिनेशन से भी बहुत सारे गेट्स बनते हैं. ठीक है, जैसे देखो सबसे पहले आ जाता है नैंड गेट. नैंड गेट मतलब क्या, जिसके अंदर एंड गेट का जो है वो हम उल्टा करते हैं. ये एंड गेट का जो आउटपुट है उसको अगर हम सपोज यहाँ पे बबल लगा देंगे, बबल मतलब अभी ये एंड गेट का जो आउटपुट है उसके सामने हमने एक नॉट गेट लगा दिया, तो इसको ही हम शॉर्ट में कैसा लिखते हैं, इस तरह से ड्रॉ करते हैं उसको. ये जो सिंबल है और सामने बबल, इसका ये बबल का मतलब क्या है, ये पूरा जो है actually called as the NAND gate, which is simply the not of AND here, not of AND. तो अभी NAND गेट का ट्रूथ टेबल कैसा होगा, तो हम समझ सकते हैं A और B और 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1. तो अभी इसमें AND गेट का हमको पता है ऑलरेडी कैसा होता है. तो AND का मतलब होता है A इंटू बी, जो कि 0 0 0 और 1 रहेगा. बट NAND गेट का मतलब होता है इस एंड का उल्टा, तो इसलिए फिर इसको हम a डॉट बी का बार ऐसा लिख सकते हैं, जिसमें यहाँ पे आ जाएगा 1 1 1 और 0. ये बन गया तुम्हारा नैंड गेट का ट्रूथ टेबल. ओके, दूसरा है नॉर गेट. ठीक है, नॉर गेट जिसमें जो हमारा जो और गेट जो होता है, ये वाला और गेट सपोज है, तो इसका जो आउटपुट है, तो आउटपुट के साथ हम ये नॉट गेट कनेक्ट कर देते हैं. वापस यहाँ पे भी हम वैसे ही करना है. तो ये सपोज ये जो नॉट और गेट है, तो इस और गेट के बाद ये पूरा ट्रायंगल लिखने की जरूरत नहीं है, ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट एक बबल ड्रॉ कर दो तो काम हो जाएगा. तो ये दोनों इक्वलेंट ही है. ठीक है, और उसका ट्रूथ टेबल जो है तो वो और का उल्टा होगा. जैसा कि हम जानते हैं ए और बी सपोज प्लस बी मतलब और होता है, तो यहाँ पे ये 0 1 1 1 आ जाता है. बट देन हेलो, हाँ फर्स्ट पिक्चर दीपक सर का ही तो है. भाई कभी नहीं, नहीं 3:30 बजे है वो.
डाउट सेशन ना. Okay, so this will be the a plus b the bar और उसका ट्रुथ टेबल होगा just like this 1 0 0 and 0 like this. Remember this is different. Okay, ये अलग है और जो हमने अभी पहले देखा था ये इनमें से किसके भी साथ मैच नहीं करता वो, तो it is completely different here. So this is the NOR gate, remember. And अब देखो ये NAND गेट और NOR गेट इन दोनों को एक्चुअली यूनिवर्सल गेट्स बोलते हैं. क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे कोई भी गेट जो है वो यूनिवर्सल गेट मतलब NAND गेट यूज करके बना सकते हैं. ये देखो NAND गेट यूज करके अगर सपोज हमको OR गेट बनाना है, OR गेट भी बना सकते हैं, इवन AND गेट भी बना सकते हैं और NOT गेट भी बना सकते हैं. ठीक है, देखो सबसे पहले हम देखेंगे NOT गेट कैसे बनाने का NAND गेट यूज करके, क्योंकि हमको पता है कि देखो NAND गेट का सिंबल क्या है हमको पता है, A डॉट B का बार, बराबर. ये NAND गेट का सिंबल है. तो इसको हमको और बनाने के लिए क्या करना होगा, देखो सबसे पहली बात नॉट की अगर बात करते हैं तो अगर एक सपोज स्विच है हमारे पास ए, अगर सपोज एक ये है तो इसको भी अगर हम सपोज स्प्लिट करके अगर NAND गेट को अगर फीड कर देंगे ना, यहाँ पे अगर सपोज एक NAND गेट अगर लगा देंगे, ये देखो ये लग गया NAND गेट. ठीक है, तो अभी उससे क्या होता है, देखो ठीक से इसका अगर हम ट्रुथ टेबल ड्रॉ करने के लिए अगर ट्राई करते हैं तो इस तरह से इनको पता चलेगा. देखो सपोज ये ए है हमारे पास जो कि 0 या 1 हो सकता है. ठीक है, अभी देखो अगर सपोज ये ए जो है वो 0 है तो यहाँ पे दोनों तरफ 0 0 आ जाएगा. और NAND के अंदर चेक करो, हमने अभी देखा था NAND के अंदर 0 0 दोनों 0 रहते हैं तो क्या होता है, NAND में 1 आ जाता है. करेक्ट है, तो इसलिए हमको यहाँ पे दोनों 0 होने से यहाँ पे NAND के अंदर 1 आ जाएगा. ठीक है, क्योंकि दोनों ए ही है ना, तो ए के जो ऑप्शन है तो वो दोनों तरफ वही रहेंगे 0 0 या तो फिर 1 1. तो इसलिए फिर यहाँ पे ए डॉट ए का बार क्या रहेगा, जैसा कि दोनों 0 रहते हैं तो यहाँ पे 1 आ जाता है. ठीक है, लेकिन अगर सपोज यहाँ पे ए अगर 1 रहता है तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा और यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, क्योंकि ए खुद ही हमने स्प्लिट करके दोनों तरफ फीड किया है. तो जब वो A1 बनेगा तो दोनों इनपुट 1 बन जाएंगे, और ये जब दोनों इनपुट 1 बनेंगे तो उस केस में NAND गेट में 1 1 का आउटपुट क्या होता है, देखो से 1 1 का आउटपुट होता है 0. करेक्ट है, तो इसका मतलब 1 1 का आउटपुट 0 बन जाएगा और इसलिए यहाँ पे 0 आ जाएगा. दैट मीन्स ये जो कॉम्बिनेशन है इस टाइप से जो हमने किया है तो वो एक्चुअली एक तरह से नॉट गेट का काम करेगा, इसलिए इसको हम नॉट गेट बोल सकते हैं. सो वी हैव कंस्ट्रक्टेड नॉट गेट बाय यूजिंग NAND गेट. ओके, ये सबसे पहली बात हो गई. अभी NAND गेट यूज करके AND गेट कैसे यूज करने का, कैसे फॉर्म करने का, तो उसके लिए एक सिंपल मेथड है कि जो सपोज ए और बी जो है तो उसको हमने सपोज NAND गेट में अगर ऐड कर दिया तो ये हो जाएगा ए और बी. तो उसका जो इसका जो आउटपुट होगा वो एक्चुअली रहेगा ए डॉट बी का बार. ओके, अभी यहाँ पे इसके आगे अगर हमने एक नॉट गेट अगर जोड़ दिया इस टाइप का तो उसका उल्टा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा. तो उसकी वजह से यहाँ पे नेगेटिव का नेगेटिव जो है वो ये नेगेटिव हट जाएगा, ऊपर का जो बार है वो बार हट जाएगा. तो इस तरह से हमको इसको स्प्लिट करके फिर से एक दूसरे NAND गेट के साथ उसको फीड करना है. इस तरह से ये बन गया NAND गेट, और इसका जो आउटपुट होगा तो वो ऐसा रहेगा जिसके अंदर ए डॉट बी का बार का फिर से बार, मतलब सिंपली ए डॉट बी ही मिल जाएगा, जो कि हम चाहते हैं. वही तो AND गेट होता है कि नहीं. तो इसलिए हम देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे जैसे ये ए होता है तो यहाँ पे वाई के बदले क्या आता है, ए बार आता है. करेक्ट है, वैसे यहाँ पे ए डॉट बी का बार है तो यहाँ पे आउटपुट में क्या आएगा, ए डॉट बी का बार का फिर से बार, मतलब सिंपली ए डॉट बी ही आ जाएगा, जो कि AND गेट कहलाता है. तो इसलिए हमको ये AND गेट मिल गया. इस तरह से ये कॉम्बिनेशन हमको AND गेट की तरह काम करेगा. और इस कॉम्बिनेशन में देखो हमने दोनों जो है वो NAND गेट्स ही यूज किए हैं. चेक करो ठीक से,
दोनों नैंड गेट्स है, तो नैंड गेट यूज करके हमने एंड गेट बना दिया, ये इसका फायदा है। और तीसरा, और गेट कैसे बनाएंगे, उसके लिए तुमको एक बुलियन एक्सप्रेशन पता होना चाहिए, डिमॉर्गन्स लॉ जिसको बोलते हैं। तो ये है कि a plus b can actually written as a plus b बार का और एक बार, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे a plus b का जो बार है उसको हम डिमॉर्गन्स लॉज यूज करके ऐसा लिख सकते हैं, a बार डॉट b बार, करेक्ट है। यस, तो वी कैन जस्ट थिंक ऑफ दिस a बार डॉट b बार का नॉट, मतलब ये नैंड गेट ही हो गया ना, लेकिन किसका, a बार और b बार का नैंड गेट हो गया वो। तो इसलिए हमको क्या करना है, a को पहले उल्टा करना है, मतलब a के जो दो टर्मिनल्स है, ये a सपोज, इसके दो टर्मिनल्स एक नैंड गेट को फीड करने हैं सेपरेटली, b के जो टर्मिनल्स है उसको भी स्प्लिट करके एक दूसरे सेपरेट नैंड गेट के साथ फीड करने हैं। ओके, और इनका जो आउटपुट है, क्योंकि यहाँ पे जैसे हमने ये a कर दिया तो ये मतलब ये इसके जैसे ही हो गया ना ये पूरा, तो इसका मतलब यहाँ पे जैसा कि हम जानते हैं यहाँ पे अगर a दिया जाता है तो इसके आउटपुट में a बार निकल जाता है, तो इसलिए यहाँ पे अगर हमने a दिया तो इसके आउटपुट में क्या आएगा, a बार आ जाएगा। इधर अगर b हमने इंटर किया तो यहाँ पे आउटपुट में b बार आ जाएगा। और अभी इन दोनों का जो आउटपुट है तो वो हमको लेके एक तीसरे नैंड गेट के साथ फीड करना है, ये रहा तीसरा नैंड गेट, ये इस तरह से। ओके, ये तीसरा नैंड गेट हो गया। इसका मतलब अभी ये a बार इनपुट लेगा, ये b बार को भी इनपुट लेगा, और उसका आउटपुट जो है तो वो a बार डॉट b बार और उसका होल बार ऐसा निकालेगा, क्योंकि वो नैंड गेट है। नैंड गेट का मतलब क्या होता है, दोनों का प्रोडक्ट और ऊपर बार, ये उसका मतलब है। तो इसलिए यहाँ पे ये जो इनपुट आ रहा है a बार और b बार, इन दोनों के बीच में डॉट आएगा और उसका बार भी हो जाएगा इस तरह से। समझा ठीक से? Yes, this is all about the, you can see NAND gate use करके सारे गेट्स हमने तैयार कर दिए। In the same way, using NOR gate also, we can just construct all different gates. तो NOR gate का मतलब है A जो भी होगा, एक इनपुट, दूसरा इनपुट, उसके बीच में वो और डालेगा और उसको बार लगा देगा, बस खत्म। ये NOR gate का मतलब है, याद रखो ठीक से, ठीक है। So using NOR gate, first of all we can just try to create NOT gate, okay, then we'll try to create OR gate, okay, and then we'll try to create AND gate, okay। तो अभी NOR gate यूज करके हमको अगर NOT gate तैयार करना है तो सेम वैसे ही हमको करना है, A के जो टर्मिनल्स है उसको स्प्लिट करके एक NOR गेट को फीड करना है। तो ये हमने NOR गेट को फीड कर दिया, करेक्ट है। यस, और उसके बाद फिर ये जो NOR गेट है तो इसका जो आउटपुट है वो ऑटोमेटिकली क्या बनेगा, A बार बन जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो अभी सपोज हमने A के जो ऑप्शन हमारे पास है तो वो है, क्योंकि यहाँ पे दोनों A ही है ना, ये भी A है और ये भी A है, तो उसकी वजह से क्या होगा यहाँ पे कि यहाँ पे या तो 0 0 आएगा या तो यहाँ पे 1 1 आएगा, करेक्ट है। बट इन बोथ ऑफ दिस केसेस इफ यू जस्ट चेक व्हाट हैपेंस टू A प्लस A द होल बार, मतलब नॉर गेट उसको क्या करेगा, तो देखो नॉर गेट में 0 0 का क्या होता है, देखो क्योंकि अगर A 0 है तो इधर भी 0 आएगा, इधर भी 0 आएगा, उसकी वजह से जस्ट चेक करो कि नॉर गेट में 0 0 का आउटपुट क्या होता है। ये देखो ये नॉर गेट है, इसमें 0 0 का आउटपुट क्या है, ये देखो 1 है कि नहीं, तो इसलिए 1 आ जाएगा, तो ये रहा हमारा 1, राइट। और 1 1 का आउटपुट क्या है, क्योंकि अगर A 1 बन गया तो इधर भी 1 आएगा, इधर भी 1 आएगा, और उसके कारण यहाँ पे नॉर गेट का जो आउटपुट है वो 1 में 1 1 में क्या होता है, देखो ठीक से, ये नॉर गेट है हमारा, इसमें 1 1 का आउटपुट क्या है, देखो ठीक से, इट इज 0 एक्चुअली, therefore we can just get it as 0 in this way। Yes, so it will be 0 here, and in this case we can just say that this NOR gate actually behaves like a NOT gate actually, तो इसलिए इसको हम A बार बोल सकते हैं बिल्कुल। तो इस तरह से ये A NOR gate जो है वो एक्चुअली यहाँ पे
एक नॉर गेट के जैसा काम, नॉट गेट के जैसा काम कर रहा है, ठीक है। वी कैन ऑल्सो मेक इट वर्क लाइक और गेट हियर। तो और गेट के जैसा काम कराने के लिए हमको क्या करना है, तो उसके लिए देखो जो a प्लस बी का जो आउटपुट है, देखो ये मतलब a है और ये b है, और इसका जो नॉर एक नॉर गेट अगर यहाँ पे जगह लगा देंगे तो इसका आउटपुट क्या मिलेगा, a प्लस बी का बार ऐसा मिलेगा, ठीक है। अभी इसके आगे हम एक बार लगा देंगे, मतलब ये सिस्टम जो है वो यहाँ पे अप्लाई कर देंगे ताकि ये उसका उल्टे का उल्टा हो जाए, मतलब इस बार के ऊपर और एक बार लग जाए ताकि वो बार ही हट जाए। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, इसको स्प्लिट करके और एक नैंड गेट को उसको फीड करना होगा इस तरह से। ये नैंड गेट लग गया यहाँ पे, तो इसका जो आउटपुट है तो वो एक्चुअली रहेगा a प्लस बी बार का और एक बार, जिसका मतलब यहाँ पे a प्लस बी हो जाएगा सिंपली, करेक्ट है। एंड दिस विल बी एक्चुअली द आउटपुट विच इज कॉल्ड एज द और गेट। सो वी हैव अचीव्ड, so we have got a or gate using nor gate in this way. And even we can just construct and gate also using nor gate only. तो नॉर गेट यूज करके एंड गेट भी कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। तो उसके लिए लेकिन हमको डिमॉर्गन्स लॉस फिर से यूज करना पड़ेगा, क्योंकि एंड का मतलब क्या होता है, ए डॉट बी होता है। ए डॉट बी को हम कैसा लिख सकते हैं, ए डॉट बी का बार और उसका फिर से बार। अभी डिमॉर्गन्स लॉस अगर यूज करेंगे यहाँ पे इस पोर्शन में, तो ये ऊपर वाला जो बार है वो वैसे ही रहेगा, लेकिन अंदर में यहाँ पे ए डॉट बी बार विल इज expressed as a bar plus b bar as it is, and then we can just be understand that this a bar and b bar इन दोनों को अगर हम नॉर गेट में अगर फीड करेंगे तब जाके हमको a प्लस बी मतलब a एंड b मतलब a डॉट बी मिलने वाला है, एंड गेट मिलने वाला है, ठीक है। तो उसके लिए हमको a को उल्टा करना पड़ेगा, और उल्टा करने का टेक्निक क्या है, ये देखो ये उल्टा करने का टेक्निक है। तो अगर हम यहाँ पे a के ऊपर उसको अप्लाई करेंगे, सपोज दिस इज a, एंड उसको उल्टा करने के लिए हमने उसको स्प्लिट किया और एक नॉर गेट लगा दिया, ठीक है। तो इसका जो आउटपुट है वो a बार हो जाएगा। सिमिलरली b सपोज ये है, तो b को भी हमने सपोज स्प्लिट किया और उसके सामने एक नॉर गेट अटैच कर दिया, ये नॉर गेट अटैच हो गया इधर, तो उसका जो आउटपुट है वो ऑटोमेटिकली बी बार बन जाएगा। और अभी इन दोनों का जो इन दोनों को हमको एज अ इनपुट फीड करना होगा और एक नॉर गेट के अंदर, तो ये नॉर गेट और एक लग गया इधर। तो इसका जो आउटपुट है तो वो क्या करेगा, ए बार प्लस बी बार का बार हो जाएगा। और ए बार प्लस बी बार का बार मतलब क्या, तो ये बार अगर हम ये जो ऊपर का बार है वो अगर हम सेपरेट करेंगे दोनों के लिए तो वो बन जाएगा ए बार बार डॉट बी बार बार, ठीक है। मतलब ही a डॉट बी, दैट्स इट, दैट इज व्हाट वी वांट हियर। सो इसलिए ये जो है हम चाहते थे तो वो हमको मिल गया इस तरह से। Okay, so in this way we have got the all these three gates using NOR gate alone. That's why this NOR gate is also called as the universal gate. Okay, तो इसको हम universal gate भी बोलते हैं क्योंकि उससे हम सारे गेट्स बना सकते हैं, इसलिए। Just wait a minute.
Okay, so this is all about the gates, logic gates. Yes. Okay, अभी इसमें देखो क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि जिसमें मान लो कि तुमको एक ए जो है उसका ग्राफ दिया हुआ है, वो ग्राफ कुछ इस तरह से दिया हुआ है। ठीक है, जिसमें सपोज ये इस तरह से है, फिर यहाँ पे इस तरह से है। यस, ओके। और दूसरी तरफ तुमको बी का ग्राफ दिया हुआ है, सपोज ये मान लो बी का ग्राफ है। ये बी है जिसमें सपोज ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, अभी ये इस तरह से ग्राफ दिया हुआ है और तुमको अगर बोला है कि फाइंड द ग्राफ ऑफ ए प्लस बी, सपोज। ओके, तो ए प्लस बी का ग्राफ कैसे बनेगा बताओ। तो ए प्लस बी का ग्राफ बनाने का मतलब क्या है, सेम वैसे हमको ड्रॉ करना है। और अब देखो इसमें ए और बी है ना, तो ए और बी पे प्लस मतलब और हमको अप्लाई करना है। और का मतलब क्या है, एनी वन इज आउटपुट इज वन, देन द एनी वन ऑफ द इनपुट इज वन, आउटपुट विल बी वन। ओके, तो यहाँ पे देखो इस इंटरवल के अंदर अगर चेक करते हो, ये देखो ये इंटरवल है सपोज, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट इंटरवल वी कैन जस्ट से। तो अभी इस फर्स्ट इंटरवल के अंदर ये सेकेंड इंटरवल है, ठीक है, ये थर्ड इंटरवल, दिस इज द फोर्थ इंटरवल। ये सारे अलग वन। ओके, तो ये सारे इंटरवल्स है सपोज। तो अभी इसमें हमको चेक करना है कि अभी देखो ये फर्स्ट इंटरवल के अंदर क्या हो रहा है ना, ये फर्स्ट इंटरवल के अंदर ए का वैल्यू वन है, देख सकते हो ठीक से, ए इज वन बट बी इज जीरो ना, क्योंकि उसके यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब वो जीरो है। ठीक है, तो वन जीरो का क्या होता है, और में वन होता है, तो इसलिए यहाँ पे जो और क्या और में और होने की वजह से यहाँ पे वन आ जाएगा। यस, तो आउटपुट में ये आउटपुट उसका बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो दूसरे इंटरवल के अंदर ए जीरो है लेकिन बी वन है, तो उसकी वजह से आउटपुट फिर भी वन ही रहेगा जरूर। फिर वापस तीसरे इंटरवल में देखो तो ये ए वन है और बी वन है, तो आउटपुट भी वन रहेगा, मतलब ये इस तरह का ग्राफ हमको मिल जाएगा आराम से। सिमिलरली फोर्थ इंटरवल में ए वन है और बी जीरो है बट फिर भी वन रहेगा। सिमिलरली यहाँ पे भी वन आएगा, यहाँ पे भी वन आएगा और यहाँ पे भी वन आएगा, बिल्कुल, क्योंकि कोई ना कोई वन है ही यहाँ पे। तो ये आउटपुट होगा एक्चुअली, समझा ठीक से, इस तरह का। अभी अगर तुमको यहाँ पे ही मान लो कि ए डॉट बी का ग्राफ बनाना है, ठीक है, ए डॉट बी का, ए प्लस बी का नहीं बनाना है बल्कि ए डॉट बी मतलब एंड गेट का बनाना है। तो उसके लिए क्या करना है, एनी वन ऑफ द इनपुट इज जीरो, आउटपुट विल बी जीरो। सो आउटपुट विल बी जीरो ओनली व्हेन बोथ ऑफ द इनपुट्स आर जीरो। कहाँ पे है ऐसा, कहीं भी नहीं है, एक भी इंटरवल ऐसा नहीं है जिसमें दोनों इनपुट्स जीरो वन है। हाँ सॉरी सॉरी, एक इंटरवल है, ये देखो ये वाला और ये वाला, ये दोनों, ये इंटरवल ऐसा है कि जहाँ पे दोनों इनपुट्स वन है, देखो ठीक है, ये ए भी वन है, बी भी वन है, तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ उसका आउटपुट वन आएगा, बिल्कुल। बाकी सब तरफ उसका जो आउटपुट है वो जीरो बना रहेगा इस तरह से।
ये 0, या से आगे भी 0, क्योंकि ए एंड बी यहाँ पे चल रहा है। ए एंड बी के एंड में क्या होता है, तो एंड के अंदर दोनों अगर 1 है तो ही 1 बनता है, अदरवाइज एक भी अगर 0 हो गया तो आउटपुट 0 बन जाता है। तो इसलिए यहाँ पे एक एक तो 0 है ही हमेशा। सिर्फ यहाँ पे एक ही केस ऐसा है, इंटरवल ऐसा है जहाँ पे दोनों 1 है, तो इसलिए फिर यहाँ पे इसी तरह से उनको मिलेगा। समझा ठीक से? यस। ओके, अगर तुमको पूछा कि इसमें ए प्लस बी बार का बना के दिखाओ, तो बना सकते हो। ए प्लस बी का तो ऑलरेडी हमने बना लिया, उसको सिर्फ उल्टा करना है उसको। तो सिमिलरली अगर तुमको बोला ए बार प्लस बी बार का बनाओ, तो भी बना सकते हैं आराम से, क्योंकि ए बार प्लस बी बार मतलब ए का उल्टा करना, बी का उल्टा करना और उसका फिर और करना है। या उससे अच्छा ऐसा है कि ए बार प्लस बी बार के बदले हम ए डॉट बी का होल बार ऐसा बना सकते हैं। तो ए डॉट बी तो हमको यहाँ पे मिल रहा है, उसका उल्टा मतलब बाकी सब तरफ 1 रहेगा और यहाँ पे सिर्फ 0 रहेगा उसका। तो ठीक है, उस तरह से हम कर सकते हैं उसको। तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आराम से, याद रखो। जस्ट वेट अ मिनट। यस, okay, so this is all about the logic gates. Okay, let us start try some MCQs based on this. Okay, इसमें अगर आपको कुछ डाउट भी है तो वो भी आप डिस्कस कर सकते हो। अगर आपने नहीं आया है ऐसा अगर कुछ है तो बोल सकते हो। सर कुछ डाउट्स है, मैंने सेंड किए थे चैट्स में। अभी सेमीकंडक्टर्स के? सर न्यूक्लियर के। हाँ ना, सेमीकंडक्टर के डाउट्स थे क्या? नो सर, न्यूक्लियर के थे। हाँ हाँ, तो वो तो हो गया ना। यस सर, मैंने जब आपका वो एंडिंग लेक्चर था ना तभी मैंने सेंड किए थे। मुझे लगा था आप एक्सप्लेन करोगे, पर आपने नहीं किया। अच्छा, कौन से? मुझे नहीं मिले एक्चुअली वो। अभी सेंड कर सकते हो? ओके सर। व्हाट्सएप पे कर दो, नहीं तो व्हाट्सएप ओके सर। पे। ठीक है, तो तब तक जब तक वो आते हैं तब तक हम कुछ एमसीक्यूज करेंगे यहाँ पे फटाफट। यस, तो देखो यहाँ पे ये है
with questions. ओके ये देखो यहाँ पे ये वाला जो क्वेश्चन है 16th वाला क्वेश्चन ट्राई करेंगे 1-2 मिनट में. Yes, just read this question carefully. Transistor, in a transistor, collector current is 20 milliampere and the base current is actually 1 milliampere only. What would be the value of alpha? Yes. Okay, so see here, what will the value of alpha? What is alpha? How it is defined? You know, it's defined as IC upon IE. Okay, ये होता है अल्फा का वैल्यू. अभी इसमें क्या क्या दिया हुआ है देखो. कलेक्टर करंट मतलब IC दिया हुआ है जो कि 20 मिली एम्पियर दिया हुआ है और एट द सेम टाइम बेस करंट इज आल्सो गिवन हियर. तो IB यहाँ पे दिया हुआ है जो कि 1 मिली एम्पियर दिया हुआ है. राइट है. तो इससे हमको पहले IE निकाल के लेना पड़ेगा तभी जाके हम अल्फा फाइंड कर सकते हैं. राइट. सो IE कैन बी फाउंड आउट टू बी सिंपली IC प्लस IB. ये प्रिंसिपल ऑफ ट्रांजिस्टर होता है ठीक है जिससे यूज करके हम ये IE निकाल सकते हैं आराम से. तो IE विल बी एक्चुअली इक्वल टू IC which is 20 plus IB which is 1. So IE will actually be equal to 21 milliampere. Correct? So once we get this IE, we can just find out alpha easily because we have this IC which is 20 that is to be divided by IE which is 21 and 20 upon 21 मतलब वो बस खत्म. ये C will be the correct option. So C will be the answer here. Yes, let's see the next one. ये देखो ये भी करके देखो 21st वाला चेक करो एक बार. In a common emitter amplifier, the beta is going to be 100 and input resistance is 1 kilo ohm. Output resistance is 10 kilo ohm. So voltage gain of the circuit is, yes. How to find out the voltage gain? You know, what is the formula for voltage gain in common emitter circuit? तो उसमें आता है कि VCE divided by VBE. ये होता है हमारा voltage gain जिसको कि हम लिख सकते हैं आराम से. यहाँ पे आ जाता है IC इंटू R आउटपुट और यहाँ पे आ जाता है नीचे बेस इमीटर वोल्टेज के अंदर IB इंटू रेजिस्टेंस इनपुट रेजिस्टेंस. ओके, इसको हम स्प्लिट करके ऐसा भी लिख सकते हैं कि IC अपॉन IB इंटू RO अपॉन RI. करेक्ट है. बट एज वी ऑलरेडी नो दैट दिस IC अपॉन IB is actually called as beta. करेक्ट है. इसको हम बीटा बोलते हैं और ये जो है तो ये तो ऑलरेडी दिया हुआ ही है. तो RO अपॉन RI वो तो हमको ऑलरेडी दिया हुआ है. तो बीटा का वैल्यू दिया हुआ है 100 तो वो हमको एज इट इज डालना है यहाँ पे. और RO का वैल्यू दिया हुआ है ऑलरेडी 10 किलो ओम तो वो 10 एज इट इज हम डाल देंगे यहाँ पे क्योंकि किलो ओम ही है दोनों. और ये RI जो है वो भी दिया हुआ है 1 किलो ओम. तो अगर हम ये सब कैलकुलेशन करते हैं तो हमको मिल जाता है 10⁻³ मतलब ही 1000. So this C will be actually the correct option for this answer question here. Getting it? Yes. Okay, काफी सारे हैं तो ऐसा करेंगे जो डाउट्स जो है वो कल डिस्कस करेंगे तीन वाले लेक्चर में. ठीक है. न्यूक्लियर के डाउट्स नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. अभी फिलहाल इसके ऊपर की और कुछ समझ करेंगे.
ओके यस, ये भी करके देखो, उसी के ऊपर बेस्ड है 24th वाला क्वेश्चन। यस, current gain in common emitter amplifier is 24, then current gain in common base amplifier will be, yes, तो अब देखो इसमें करंट गेन इन कॉमन इमिटर एम्पलीफायर, कॉमन इमिटर एम्पलीफायर के अंदर करंट गेन क्या होता है, बीटा, ठीक है, जिसको हम IC अपॉन IB ऐसा डिफाइन करते हैं। लेकिन कॉमन बेस एम्पलीफायर में अल्फा इज गोइंग टू बी द करंट गेन which is defined as IC upon IE actually, right? So अब यहाँ पे IC upon IB तो दिया हुआ है, जो कि 24 बोल के रखा है, ये 24 है हमारा। अभी इसको यूज करके अगर हमको अल्फा निकालना है, तो अल्फा और बीटा के बीच में डायरेक्ट एक रिलेशनशिप भी हमारे पास है, याद है लास्ट टाइम हमने उसमें उसको डिराइव भी किया था, ठीक है ना। तो यही बना अभी भी कर सकते हैं 2 मिनट में, क्योंकि IE जो है वो हमेशा IB प्लस IC के बराबर होता है, ये हमको पता है। If we just divide this whole thing by IC, then IC gets cancelled here and becomes 1, and here IC upon IB is बीटा ना, तो ये इसको 1 upon बीटा बोल सकते हैं, और इस तरफ इसको 1 upon अल्फा बोल सकते हैं। तो अगर ये रिलेशनशिप अगर हम यूज करते हैं तो हमको मिलेगा 1 upon अल्फा इज इक्वल टू 1 upon बीटा प्लस 1, दैट मीन्स इट विल बी 1 upon alpha is going to be equal to 1 upon beta. Beta is already 24. So if we just put it here, then it becomes 24, 1 upon 24 plus 1, which actually becomes, so 1 upon alpha is equal to 1 plus 24 upon 24, मतलब वो 25 upon 24 हो गया, correct है? And then from this only we can just get alpha to be simply reciprocal of this, मतलब 24 upon 25. which can be expressed in decimals by just multiplying it by 4. Okay, इन दोनों को अगर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा 96 और यहाँ पे आ जाएगा 100, राइट? सो 96 अपॉन 100 मतलब ही वो 0.96 बन जाएगा, जो ही बी ऑप्शन में ऑलरेडी अवेलेबल है। दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट वन। स्टॉप जो है थियोरेटिकली है, तो थियोरेटिकल तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, जो टॉपिक डिस्कस किया है उससे को मिल जाएगा। ये भी देखो एक बार ठीक से, क्वेश्चन नंबर 66। Okay, semiconductor contains holes and electron concentration that is 12 into 10 raised to 17 and 4 into 10 raised to 11. The semiconductor is of which type? अब देखो इसका मतलब क्या है ना कि होल्स का कॉन्सेंट्रेशन 12 है और इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन 4 into 10 raised to 11 है, तो obviously we can just note that this concentration of holes is actually greater than the concentration of electrons, right? तो अगर ऐसा है तो इसका मतलब वो पी टाइप सेमीकंडक्टर होना चाहिए, क्योंकि होल का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो इसका मतलब वो पी टाइप सेमीकंडक्टर हो गया, दैट्स इट। और अगर इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है होल्स के कॉन्सेंट्रेशन से, तो इसका मतलब वो एन टाइप सेमीकंडक्टर होगा। और अगर दोनों का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल है, इलेक्ट्रॉन और होल्स का कॉन्सेंट्रेशन अगर इक्वल होता है, तो वो सिंपली इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होगा, ठीक है? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब प्योर सेमीकंडक्टर वी कैन से, नॉट डोप्ड, ठीक है? सो अकॉर्डिंगली वी कैन जस्ट अंडरस्टैंड दिस, ठीक है? तो यहाँ पे हमने ये इतने सारे क्वेश्चंस किए हैं, some more questions we can just do, but just go through these questions on your own also and just sort out the doubts so that we can just discuss them in the next lectures,
ठीक है, तो कल के लेक्चर में हम पहले न्यूक्लियस के डाउट डिस्कस करेंगे। तो जो चाहिए तो मैं चैट पे डाल के रखता हूँ, आपका जो मोबाइल के अंदर का जो चैट है तो उसके अंदर डाल के रखता हूँ। जस्ट यू ऑल्सो ट्राई एंड देन वी कैन जस्ट डिस्कस देम लेटर इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, चलो ठीक है, सो लेट अस सी, लेट अस स्टॉप हियर। थैंक यू ऑल ऑफ यू।